A very good morning to all of you. As you know, now we are going to revise our numericals. So our first numerical is referring to this figure. This is already given in your page number 18, chapter 2 and figure 2.9b. An insect flying at a constant speed of 50 centimeter per second flies from A to B, B to C and C to A. A to B, B to C and C to A. So firstly we have to find its displacement. So what is the definition of displacement? It is the difference between initial and its final position. Initial means from where it starts and the final position is from where it ends. So it start from A, that means A is its initial position. Then move to B, B to C, that means C is the final position. अब उसने क्या बोला है, फ्लाइज फ्रॉम एक इंसेक्ट है जिसने फ्लाई किया इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्रॉम ए टू बी, ए से बी गया, बी से सी और सी से वापस कहाँ पे आ गया, ए पे. वैसे तो उसकी ए फाइनल या इसके अकॉर्डिंग ए उसकी इनिशियल पोजीशन थी और सी उसकी फाइनल. अब उसने क्या किया कि वो वापस सी से दोबारा ए पे आ गया. दैट मीन्स इट्स इनिशियल पोजीशन इज सेम एंड इट्स फाइनल पोजीशन. क्योंकि ए से स्टार्ट किया उन्हें वापस भी कहाँ पे आ गया, ए पे. सो उसका डिफरेंस क्या होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था वहीं पे उसका एंड हो गया. सो इट्स डिस्प्लेसमेंट विल कम ज़ीरो. वाई ज़ीरो? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. इनिशियल मीन्स फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए and final position where it ends again at A. That means there is no difference between initial and the final position, so both are the same points, so its displacement is 0. Now B part is what is the total distance it covers. Total distance means A to B, B to A and A to B, B to C and C to A. So A to B how much distance is covered? क्या बोला था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है कि आपका जो बॉडी है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी. सपोज आपने C पर पहुंचना है, A टू डायरेक्टली जब आप C पे जाते हैं विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? और जब आप डायरेक्शंस चेंज करके उसी रास्ते में 2-3 और पाथ्स को फॉलो करते हो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस. अब देखो A टू B डिस्टेंस उसका कितना है, 4 मीटर. B टू C कितना है, 3 मीटर. अब C टू A कितना है, 5 मीटर. सो हेयर टोटल डिस्टेंस कवर्ड AB डिस्टेंस प्लस BC प्लस CA. 4 + 3 + 5, 4 3 7, 7 5 12 meter is the answer. Last is how much time does it take to return to A. कि उसने A to B मूव किया, B to C, C to A. अब उसने जहाँ से शुरू किया वहाँ से लेकर उसने वापस जब वो आया वहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. सो स्पीड इज गिवन टू अस दैट इज 50 सेंटीमीटर पर second. So here is centimeter but our distance is given in the meter form, so it should be same. So we can convert meter into centimeter. How? We know in 1 meter 100 centimeters are there, so 12 multiply 100 that is 1200 centimeter. So formula to find out the time is distance upon speed. Now distance is 1200 and speed is 50. 2 4 24 second. That means it takes time
24 सेकेंड्स टू रिटर्न टू पॉइंट ए। दोबारा उसकी इनिशियल पोजीशन में आने के लिए उसने कितना टाइम लिया? 24 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट numerical. Second numerical. A soldier marches at the speed. What is given? Speed 2 meter per second. What distance will he cover in 1 hour? So time is given 1 hour. Now you can see here is seconds and here is hours. Our first and main condition is we have to take same units. Here is seconds, here is hours. So that means we have to convert hour into second. We know in 1 hour how many minutes are there? 60 minutes. And in 1 minute, how many seconds are there? 60 seconds. So when we write 1 hour, then what will come? 60 multiply 60, 3600 seconds. So we converted hour into seconds. So speed is equal to distance upon time. Distance we have to find. Speed is given 2 and time is also given 360 seconds. We already done in 6th class cross multiplication in our maths subject. So distance is equal to 2 multiply 3600, 7200 meter. Meter you can convert it into kilometer also. We know in 1 kilometer how meters are there? 1000 meters. And in 1 meter 1 by 1000 kilometer. That means 7200 meter is equal to 7200 meter by 1000 kilometer. So 1 0 is left. Leave the 1 digit as we done in decimal and put the decimal. So it is equal to 7.2 kilometer. You can leave it here also and here also, because there is no, they didn't mention anything that you have to write distance in meter or kilometer. So you can leave here also and you can do this one also. This is your second numerical. Now your third numerical. A car travels at 40 km per hour for first third of its journey, 35 km per hour for the second third of its journey, and 42 km hour for the final third. फर्स्ट थर्ड में उसकी स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर. और उसके सेकंड थर्ड में उसकी कितनी थी? 35 किलोमीटर पर आवर. और उसके फाइनल थर्ड में कितनी थी? 42 किलोमीटर पर आवर. यू कैन सी एवरीवेयर यूनिट्स आर सेम, किलोमीटर पर आवर. अब हमने क्या निकालना? व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड. कि सपोज आप ए पर हो, ए से आपने सी पे जाना है. ए टू बी आपने, जब आपने ये पार्ट उसका कवर किया तब आपकी स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर. डी पे जाना है सपोज, ठीक है. उस ये आपका बी पॉइंट आ गया. फिर बी से जब आप सी पे गए तो आपकी स्पीड हुई 35 किलोमीटर पर आवर. अब सी से जब फाइनल पोजीशन डी पे पहुंचे तो आपकी स्पीड क्या थी? 42 किलोमीटर पर आवर. तीनों उसकी स्पीड्स ही हैं. सो हमने क्या निकालना है? एवरेज. एज यू नो वी ऑलरेडी डन दिस इन 6th क्लास ऑल्सो. हाउ टू फाइंड द एवरेज? सम ऑफ गिवन डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा. हेयर इन प्लेस ऑफ डाटा व्हाट इज गिवन? सम ऑफ इट्स स्पीड्स जो उसने जर्नी में कवर की. नंबर ऑफ times it covers, number of parts it covers for the completion of its journey. कि जितनी उसने स्पीड अलग अलग टाइम में कवर की उनको ऐड करो. नीचे किससे डिवाइड करना है? जितने पार्ट्स में उसने जर्नी को कंप्लीट किया. नंबर ऑफ पार्ट्स टू कवर और टू कंप्लीशन ऑफ इट्स जर्नी. स्पीड्स कौन कौन सी थी? 40, 35. आप सपोज यहाँ पे लिख सकते हो. पहले आप यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो.
स्पीड, टोटल स्पीड कितनी है उसकी 40 + 35 + 42 7 117 km/h. Now we have to find out the average speed. What is the formula for average speed? Sum of speeds divided by number of times number of parts it covers to complete its journey. कितनी स्पीड है 117 एंड नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट थे उसके फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड एंड द फाइनल थर्ड. हाउ मेनी पार्ट्स 3. सो व्हाट विल कम 3 and 9 39 km/h. एवरेज स्पीड मीन्स कि उसने कि फर्स्ट पार्ट में वो 40 की स्पीड पे गया, फिर उसकी 35 होगी, फिर 42. एवरेज स्पीड उसकी क्या निकली कि उसने टोटल जो जर्नी है वो इतनी स्पीड की एवरेज पे कवर की कि एटलीस्ट उसकी 39 किलोमीटर स्पीड से उसने जो अपनी जर्नी है उसको कंप्लीट किया. इज़ इट क्लियर? वेन एवर यू हैव टू फाइंड द एवरेज, तो आपने क्या करना है, जो कोई भी डाटा आपको दिया है, चाहे स्पीड हो चाहे डिस्टेंस हो, एनीथिंग, फर्स्टली आपने उसको ऐड करना है और नीचे उसको डिवाइड किससे करना है कि आप कितने पार्ट्स में जर्नी को कंप्लीट किया, या फिर वो कहीं पे रुका, वो कितने पार्ट्स थे, एनीथिंग एल्स. क्लियर? नाउ आर फोर्थ. अ बस ट्रेवल्स एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 35 km/h. अब हमें दिया क्या है, एवरेज स्पीड दी है कितनी 35 km/h बिटवीन टू टाउन्स दैट आर, डिस्टेंस कितना दिया है 245 किलोमीटर. क्लियर? बोथ यूनिट्स आर सेम, किलोमीटर, सो नो नीड टू कन्वर्ट एनी यूनिट. हमने क्या निकालना है इसका टाइम फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 245 and its speed is 35. When you divide 245 by 35, but you will get 7 hour. ये हमने टाइम निकाल लिया कि उसने, अब उसका एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइन है. क्या लाइन है? इफ़ इट स्टॉप्स ट्वाइस मीन्स 2 times. अगर वो उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 2 बार रास्ते में रुका, फॉर हाफ आवर ब्रेक्स ऑन वे. कितनी ब्रेक ली उसने? 2 बार ब्रेक ली आधे घंटे की. आधा घंटा मीन्स हाफ प्लस हाफ. जो फर्स्ट टाइम रुका तब भी उसने आधा घंटा स्पेंड किया, सेकेंड टाइम रुका तब भी आधा. दैट मीन्स 1 hour उसने टोटल इसमें क्या किया, स्पेंड किया. और वैसे उसकी जो जर्नी की स्पीड थी वो इतनी और डिस्टेंस इतना था कि अगर वो बिना रुके जाता तो वो कितने घंटे में पहुंच जाता, 7 hour में. अब उसने 1 hour स्पेंड किया, सो टोटल टाइम क्या हो गया कि जितना वो उसकी स्पीड और डिस्टेंस से फाइंड आउट किया है हमने, प्लस 1 hour जो उसने स्पेंड किया एक्स्ट्रा, दैट इज 8 hour. सो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स जर्नी इज 8 hour. नाउ फाइनल फिफ्थ, अ सिंपल पेंडुलम. दिस इज अ पेंडुलम completes 20 oscillation in 30 seconds. Suppose this is a point which is called the मीन पोजीशन क्या होती है, जो जहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन में है. रेस्ट मीन स्टेबल है विदाउट एनी मूविंग. दिस इज बी, दिस इज सी. क्लियर? मीन पोजीशन एंड दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशंस बोथ. अब उसने क्या बोला है आपको, ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 20 ऑसिलेशन. उसने जो 20 ऑसिलेशंस हैं वो कितने टाइम में कन्वर्ट की, 30 सेकेंड्स में. दैट मीन्स कि उसने 1 ऑसिलेशन कितने में कंप्लीट करेगा, वो 30 डिवाइड बाय 20, 3/2 सेकेंड में. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मूव फ्रॉम एन एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन. अब क्या है कि वो कितना टाइम लेगा कि वो मूव करे एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक. अब आप देखो, उसने एक ऑसिलेशन क्या होती है, ए से बी गया,
यहाँ से हमने उसको छोड़ दिया, वो यहाँ पे गया A to B, B से वापस A पे आया, फिर A से वापस C पे गया, C से वापस कहाँ पे आया A पे, यहीं पे रुक गया। अब हमने क्या निकालना है कि एक्सट्रीम पोजीशन से लेके मीन पोजीशन तक उसने कितना टाइम लिया। टोटल हमने क्या निकालना है, एवरेज ही निकालनी है एक तरह। क्लियर। अब देखो A to B, B to A, A to अगेन C, A से हमने उसको छोड़ा, A to कहाँ गया, वो B पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, B to वापस A पे आया, A to फिर वो C पे गया और C से फिर दोबारा A पे आया। तो उसने कितने पार्ट्स कवर किए, 1 2 3 4, A से वापस A पे आने के लिए, क्योंकि जब आप इसको छोड़ोगे तो डायरेक्टली यहाँ से होके फिर वो इधर को जाएगा। यू कैन ट्राई इट एट योर होम ऑल्सो विद थ्रेड। तो उसने कितने पार्ट्स में उसने 1 ऑसिलेशन कंप्लीट की, BAC A। सो हाउ वी विल फाइंड, जितनी एक ऑसिलेशन में उसने जितना टाइम लिया 3/2 सेकेंड्स, और टोटल कितना उसके पार्ट्स थे जिसमें उसने उस डिस्टेंस को कवर किया, 1 2 3 4, 3/2 इंटू 4, 3/4 to 8, you can divide 3/8, 3 0, 3 नहीं आता 8 के टेबल पे, पुट द डेसिमल, 30, 3 24, 6 60, 7 56, 4 45, सो 0.375 सेकेंड्स। क्लियर। क्या था, एक पेंडुलम था, उसने क्या बोला था कि उसने यहाँ पे 20 ऑसिलेशन, पूरी ऑसिलेशन कब कंप्लीट होती है, जब A से वो B पे जाए, B से दोबारा A पे आए, फिर C पे जाए, दोबारा A पे आए, कि दोनों डायरेक्शन में मूव करने के बाद वो अपनी मीन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हो, वहाँ पे वो आए अपनी रेस्ट की पोजीशन में। तो 20 ऑसिलेशन उसने 30 सेकेंड्स में कवर की, और 1 ऑसिलेशन हमने कैसे निकाल दिया, जितने 20 ऑसिलेशन को डिवाइड करके जितना टाइम उसने उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन से। तो उसकी 1 ऑसिलेशन कितने हुई, 3/2 सेकेंड में। अब हमने क्या निकालना है कि जब वो वापस यहाँ पे आया तब उसने कितना टाइम लिया। सो कितने पार्ट्स में उसने किया काम, B to A, A to C, C to A, कितने पार्ट्स हुए, 4। सो टोटल एक ऑसिलेशन में उतना जितना टाइम लिया उसको डिवाइड कितना, जितने पार्ट्स में उसने उस ऑसिलेशन को कन्वर्ट किया, 0.375 seconds. So how time does it take to move from an extreme position to the mean position is 0.35 seconds. This is the total time. हमने क्या निकाला है कि अगर वो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन में जाएगा तब इन दोनों के बीच में उसने कितने टाइम में उसको कवर किया, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, कि वो कितना टाइम लेता है दोबारा उसी पोजीशन में आने के लिए। सो होप दिस न्यूमेरिकल्स आर क्लियर टू यू। इफ एनी टाइप ऑफ डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क मी और कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।